بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमईन। अम्मा बाद हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग बाबु ज़कातिल अस्मान, किताब ज़का में बाबु ज़कातिल अस्मान पढ़ रहे हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है वद्दिरहमु इस्नता अशरता हब्बत खरूफ। यहाँ से पढ़ना है। हमारा ये हल्का नंबर 150 है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दिरहमु इस्नता अशरता हब्बत खरूफ वल्मिस्कालु दिरहम वसलासतु अस्बाअ दिरहमिन अशरतु दराहिम सबअतु मसाकील वयुज़म्मु الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي، وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدو، وكذا في المباح المعد للكراء لأن الصناعة المحرمة عدم. जी وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النمى فبقى ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إن زادت. जी शेख। فبقي ما عداه على الأصل ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء. ويخرجوا पढ़े उसको। हाँ मुताद्दी। ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء. فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه صرف. تحرم पढ़े بدون شدة. जी। وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه صرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة،
رواه الأثرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلات بالفضة، والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكما. والجوشن الدرع والخوذة البيضة، وما دعت إليه ضرورة البيضة البيضة وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه أحمد ورواه أبو داود والحاكم، وكذا ربط الأسنان. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. لا الركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية. जी सही है। دي. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، ولعدم ورود الشرع بتحديده. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر الياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء. وذكره ابن الجوزي وذكره ابن الجوزي في الموضوع وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. जी चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब में किताब ज़का पढ़ रहे हैं और किताब ज़का में बाब ज़कातिल अथमान पढ़ रहे हैं। इब्तिदाई कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिरहम, दीनार, मिस्काल, इनका वज़न मुआसिर औज़ान के एतबार से कितना होता है, और फिर ज़ेवरात में ज़कात है या नहीं है, ये मसला है। और भी कुछ चीज़ें जो ज़िम्नन सोने चांदी की ज़कात से मुताल्लिक़ है। देखिए अब दिरहम का वज़न ये बतला रहे हैं। पहले ज़माने में सारी चीज़ें हर इलाके में औज़ान वहाँ के इलाके के एतबार से हुआ करते थे। मक़दिसी रतल, मक़दिसी अलग, रतल इराक़ी अलग। तो ये औज़ान हर इलाके के अपने होते थे। उसी एतबार से कुछ उमूमी तौर पर भी एक वज़न रखा जाता था। जैसे दाने वगैरह, इतने दाने जमा करें तो वो इतने ग्राम हो जाएंगे। जैसे इससे पहले ये बात आई कि शायीर के बगैर छिले हुए जो दाने हैं उसको अगर जमा करेंगे तो
उसका वजन ग्राम के बराबर होता है। ये पुराने जमाने के कुछ औजान इस तरह भी समझे जाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजों से लोगों को छुटकारा हुआ। ये सारी चीजें अब ये दाने या उसके किसी और के जरिए से उसको वजन करने की जरूरत नहीं है। करिए करिए में, गांव गांव में, हर जगह सारे औजान मुत्तफिक हैं। तो दिरहम का ये वजन बतला रहे हैं। खरूब के दाने के बराबर 12 दाने। खरूब किसे कहते हैं? उसको ये जंगली दरख्त जैसे उगता है ना, जो फली बकरियां वगैरह खाते हैं, उसके जो दाने होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उग जाते हैं। और उसका दाना जो है बिल्कुल एक छोटा सा, जैसे चिंचे की शक्ल में होता है, ब्राउन होता है, लेकिन चिंचे की उतना उतना मोटा नहीं रहता, बहुत छोटा रहता है वो दाना। ये जो फली होती है, जंगली फली, उसके अंदर का जो दाना है वो उसके बराबर है। तो ऐसे 12 दाने मिलाएंगे तो दिरहम का वजन होगा। और मिसकाल कितना होगा? 1 दिरहम और 1 दिरहम के 3 सुबह। अब ये सब छोड़ें, आप इसको एक मोटे मोटे अंदाज में आप कहीं किताब के हाशिए में लिख लें, या जहां पर ये कलिमात हैं वहीं पर लिख लें कि देखिए, एक मिसकाल होता है 4.25 ग्राम। तो मतलब ये कि 4.25 ग्राम एक मिसकाल। और इस तरह अगर 20 मिसकाल बोलेंगे तो ये हो जाएगा 85 ग्राम। क्योंकि ये 4.25 इंटू 220, अगर आप 20 से उसको जरब दे देंगे तो ये 85 ग्राम सोना बनेगा। 20 मिसकाल जो हदीस में कहा गया है, उसका वजन हालिया वजन के एतबार से 85 ग्राम होता है। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, किसी ने 95 कहा, किसी ने 70 कहा। लेकिन अब जो लजना दायमा का फतवा है उसमें 85 ग्राम ही को 20 मिसकाल कहा गया है। अब मुख्तलिफ इलाकों में अब उसके भी अलग नाम बोलते हैं लोग। 8.5 तोले, कोई कहीं किसी इलाके में सौरन, पता नहीं क्या क्या, कुछ अलग अलग नाम, माशे, इस तरह मुख्तलिफ वजन अपने तौर पे फिर अलग रखते हैं। लेकिन ये कि मुत्तफक अलैह सबके पास ग्राम है। तो ये जो 85 ग्राम का मतलब हो गया 8.5 तोले। इतने में रुबउल उश्र होगा। रुबउल उश्र देखिए कैसे समझ सकते हैं आप? 20 मिसकाल। 20 मिसकाल में एक मिसकाल कितना है मशाइख? उसका कितना हिस्सा है? 20 मिसकाल में से एक मिसकाल कितनावा हिस्सा है उसका? रुबउल उश्र क्या? पहले पहले ये देखें कि वो जो 20 मिसकाल है उसमें से एक मिसकाल 20वां हिस्सा है। उसको उसको बाद में लाते हैं, देखिए। अच्छा, उसके बाद जब एक मिसकाल 20वां हिस्सा है तो आधा मिसकाल हो जाएगा 40वां हिस्सा। आधा मिसकाल हो जाएगा 40वां हिस्सा। अब देखिए, मसलन जो है, अगर आपको ये आदत समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, 100 ग्राम है। 100 ग्राम में 10 ग्राम कितना होता है? 100 का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा है, मतलब एक उश्र है। अच्छा, अब उसका निस्फुल उश्र कहाँ होता है? 2.5।
नुस्फ आके 5। अयवा, निस्फुल उश्र हो जाएगा 5। 5 अब उसको भी रुबा करना है, तो रुबुल उश्र क्या होगा? कोई 2.5 होगा। 2.5 होगा। तो सीधी सीधी बात, 1000 में 100 में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपए, 1,00,000 में 2,500 रुपए। अगर कीमत की बात करें, 1,00,000 में 1,00,000 में 2,500 रुपए, 10,00,000 में 25,000 रुपए। ये एक मोटा मोटा हिसाब है ज़कात में। अगर इसी तरह हम दीगर औजान को समझना चाह रहे हैं तो आप दिरहम को लिख लें। एक दिरहम कितना होता है? 2.975। पूरा 3 ग्राम नहीं, एक दिरहम होता है 2.975 एक दिरहम। अब इसको आप एक काम कीजिए, 2.975 को अब 200 दिरहम चांदी में ज़कात है, तो 200 से ज़रब दीजिए, देखिए कितना निकलता है। जी मशाइख, 2.975 इंटू 200 कितना हो रहा है? 595 शेख। 595। तो मतलब ये कि ये सोने के निसाब की ये हद है। सोने का निसाब अगर किसी के पास करीब करीब 600 ग्राम चांदी, मतलब 595 का मतलब है कि तकरीबन हो गया 600 ग्राम, समझे? तो ये 595 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो उसमें भी रुबुल उश्र होगा। तो मतलब उसको भी उसमें से 40वां हिस्सा देना पड़ेगा। अब 595 ग्राम किसी के पास चांदी है तो उसमें ज़कात वाजिब होती है। 595 नहीं है, 300 ग्राम चांदी है, तो क्या उस पर ज़कात है? नहीं है। नहीं है 300 ग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निसाब को पहुंचा नहीं है। क्योंकि निसाब को नहीं पहुंचा है। इसी तरह अगर 60 ग्राम है, 70 ग्राम है, 5 तोले 6 तोले है, तो भी उस पर ज़कात नहीं है। उस पर ज़कात नहीं है क्योंकि वो ज़कात का जो निसाब अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया 20 मिस्काल, उसको वो नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, इसी तरह देखिए दीनार का भी एक वजन लिख लीजिए। दीनार भी एक ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है इन सारे इस चीजों में। दीनार का वजन होता है 3.40 ग्राम, मतलब तकरीबन 3.5 ग्राम के करीब हो जाता है इसका वजन। कितना शेख? 3.40। 3.40 जी जी। दीनार का वजन 3.40 ग्राम। अब यहाँ पर कहा गया वो बिदनानीर खमसतुन व इशरूना, दीनार का अगर हिसाब करेंगे। अब ये समझ लीजिए दीनार और मिस्काल क्या चीज है। मिस्काल आप ऐसे ही सोना जो बगैर बना हुआ है उसको मिस्काल कहेंगे, और अगर किसी सिक्के की शक्ल में बना हुआ है तो उसको दीनार कहते हैं। तो इस्लामी दीनार अल इस्लामी जो था, जो इस्लामी दीनार था, उसका वजन इतना था 3.40 ग्राम। इतना सोना उसके अंदर हुआ करता था। तो अब अगर कोई आदमी दीनार का हिसाब करता, 25 दीनार किसी के पास होते, तो दीनार तो उमूमन वही सोने के जो सिक्के होते थे उसको बोलते थे। तो 25
सिक्के अगर किसी के पास होते तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब। अभी देखिए यहाँ पर जो इबारतें पीछे गुजरी है उसके अंदर लिखा गया वो भी दनानीर खम्सतुन व इशरून व सुबआ दीनारिन व तुसअ दीनार। तो एक दीनार का अगर वजन का हिसाब करेंगे तो 25 दीनार, और एक दीनार के 2 सुबह, और एक दीनार का 1 तुसअ। उसको तिसअ ना पढ़े, सबअ ना पढ़े, सुबह और तुसअ, उसका 9वां हिस्सा, उसका 2 7वें हिस्से, ये वो तफसील है। अब अगर आप उसको बारीकी से ग्राम में ले लेते हैं तो मसला खत्म होता है। 3.40 ग्राम एक दीनार का वजन है। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकिया भी कहा। उकिया कितना होता है? उकिया असल में 40 दिरहम को कहते हैं। अब एक उकिया का अगर मोटा मोटा आप वजन निकालेंगे तो 119 ग्राम। अच्छा, 119 इंटू 5 कीजिए, कितना निकलता है जवाब? 119 इंटू 5। देखिए कितना जवाब निकल रहा है। जी मशाइख, कितना आया जवाब? कितना? 119 का 119 इंटू 5, 5 से तो जरब करें। 595 आ रहा है। 595 आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसा फीमा दूना खम्सी अवाकिम मिनल वरिक़ि सदक़तुन। 5 उकिया चांदी से कम हो तो उस पर ज़कात नहीं है। तो एक उकिया 119 ग्राम का होता है, उसके 5 अगर आप जरब देंगे 5 उकिया, तो मतलब है कि 595 ग्राम। वही कलिमात या वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। उकिया, मिसकाल, दिरहम, दीनार, इन 4 अल्फाज के आप अच्छी तरह मुआसिर औजान को याद रखिए, मसला बहुत आसान रहेगा। अब उसको मोटे अंदाज में 85 ग्राम सोना, 595 ग्राम चांदी, इतने में ज़कात वाजिब होती है 2.5। अच्छा, चलिए एक आध हिसाब भी कर लेते हैं ताकि ज़कात निकालने का तरीका भी वाज़ेह हो जाए। किसी आदमी के जी पास, जी लिखिए, अब 100 ग्राम सोना है। 100 ग्राम सोना है 22 कैरेट का, और मान लें 230 ग्राम, 230 रियाल 1 ग्राम की कीमत है। 100 ग्राम सोना है, 230 रियाल 1 ग्राम की कीमत है। तो कितने, एक 100 ग्राम सोने की या 10 तोले सोने की क्या कीमत हुई मशाइख रियाल में? सीधे सीधे 100 को अगर इंटू 230 से करेंगे तो नहीं होगा शेर? हो जाएगा। तो 23,000 हो गए शेर। 23,000 में। अब आप इसको, इसका 40वां हिस्सा निकालना है, तो क्या करेंगे? आसानी से निकालने के लिए इसको 40 से तकसीम कर दीजिए। जी हमने 1 ग्राम सोने की कीमत मालूम की, हमारे पास जो सोना था उससे उसको जरब दिया, तो टोटल हमारे पास 23,000 रियाल हैं गोया के। अब 23,000 रियाल में ज़कात कितनी निकलेगी वो जानने के लिए आप 40 से उसको तकसीम कर दें। 40 से तकसीम कर देंगे तो आपको आपके ज़कात की रकम कितनी होती है 23,000 रियाल में पता चल जाएगी। मालूम हुआ मशाइख? जी 575 आया शेर। आई वाह, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि 100 ग्राम सोने की कीमत क्या है आपके पास जो सोना है?
जी मुशाहिद। 23,000 शेख। तेईस हजार सही है। 23,000 लागत या उसकी पूरी उसकी वैल्यू बन गई। अब उसमें से आपको 40वां हिस्सा निकालना है, तो मतलब है कि 40 से आपको तकसीम कर देना है। उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि कितने रियाल आपकी ज़कात निकलेगी। ठीक है ना शायख? जी जी। अभी जो आप रेट ये बताए वो अभी हालियन ये रेट चल रहा है क्या शेख? हाँ हाँ। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो बारकल्लाह। तो ये 40वां हिस्सा मालूम करने का ये तरीका है। पहले आपके पास जो सोना रहता है उस सोने को आप ज़रब दें उस रोज की कीमत से। जो कीमत निकल आएगी उसको 40 से तकसीम कर दें, तो जो पैसा निकल आएगा वो आपके ज़कात की रकम होगी। आप उसको फिर किसी भी करेंसी में ढाल लें, जो भी करें, कोई मसला नहीं। तो देखिए अभी 23,000 रियाल बनेंगे तो तकरीबन 23,000 रियाल होते हैं आजकल के एतबार से 4.5 लाख के करीब। हम लोग मोटा मोटा हिसाब कैसे करते हैं? 1 लाख में कितने हजार रुपयों में अगर बात करेंगे? 2,500। 2,500। 2,500। तो 4 लाख के मोस्टली कितने होते हैं? मोटा मोटा 10,000। हिसाब 10,000 होते हैं। अब हमारे पास चूंकि 4.5 लाख के करीब है, तो 575 रियाल अगर हम इंडियन करेंसी में जहनी एतबार से ऐसे ही कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 बोल सकते हैं जी। 12,000 करीब हो जाएगा। तो ये इतना ही है। तो ये आप इसको किसी भी करेंसी से आप उसको फिर जान लें, कोई मसला नहीं। लेकिन हिसाब तो सोने की ज़कात करने का अंदाज यही है। चलिए, तो ये चूंकि जरूरी थे, और ये जंगली फली 10-12 पीस वो सब ना हमको याद रहेगा ना वो कोई खास जरूरी चीज है। तो आप इतना याद रखें, मिसाल का वजन 4.25 ग्राम होता है, 4.25 ग्राम। और दीनार का वजन होता है 3.40 ग्राम। इस तरह 20 मिसकाल सोने का वजन होगा 85 ग्राम। और 200 दिरहम चांदी का वजन हो जाएगा 595 ग्राम, जिसको हम लोग वो साढ़े क्या कहते हैं 600 ग्राम चांदी भी कह सकते हैं, या है कि आप ये कह सकते हैं 5 उकिया वही 600 ग्राम के करीब होता है। तो ये वजन इसको आप याद रखें। अच्छा, والدرهم 12 حبة خروب والمثقال درهم و3 أسباع درهم 10 دراهم 7 مثاقيل 10 दिरहम 7 मिसकाल होंगे। ये वजन ये सब मिसकाल का हम लोगों ने ग्राम में पढ़ लिया। ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء। अच्छा, आपके पास 85 ग्राम सोना नहीं है, बल्कि 75 ग्राम सोना है, एक 100 ग्राम के करीब, या मान लो 200-300 ग्राम के करीब चांदी, तो दोनों को मिलाएंगे तो ज़कात वाजिब होगी। तो ये कह रहे हैं मिला दिया जाए, सोने को चांदी से मिला दिया जाए निसाब को मुकम्मल करने के लिए। दोनों में से किसी एक से भी आप ज़कात दे सकते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि सोने को चांदी में मिलाया नहीं जाएगा ज़कात के लिए, क्योंकि दोनों की जिन्स अलग अलग है। दोनों की जिन्स अलग अलग है, तो इस एतबार से दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने मकासिद का एतबार करके उसको एक समझाया है, जबकि ऐसी बात नहीं है, दोनों अलग अलग जिन्स हैं इसलिए। और ये भी देखो कि अगर आप 85 ग्राम सोना लेना चाहते हैं, 600 क्या कहते हैं 595 ग्राम चांदी दे के वो लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल-फिद्दतु बिल-फिद्दति वत-तमरु बित-तमरि मिथलन बिमिथलिन
यदन बियदिन हा वहा, बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर 5-6 चीजें जो जिक्र की हैं, उसके अंदर एक ये भी है कि सोने के इवज खरीदना, और इसी तरह चांदी को चांदी के इवज खरीदना है तो मिसलन भी मिसलिन, बराबर मिसल जो आप दे रहे हैं उसी के बराबर आपको सोना लेना चाहिए। यदन बियदिन, उसी वक्त लेना चाहिए। वो जो किस्तवार, देखिए यहाँ पर एक चीज चलती है कि आप ये हार खरीद लें और आपको इसके इंस्टॉलमेंट अदा करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। 60 ग्राम है, आपको कम से कम 2 साल 3 साल मिलेंगे उसके लिए अदा करने के लिए। तो ये किस्तों में अदा करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सोने चांदी का मसला ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बर वक्त अदायगी के लिए कहा। लेकिन अगर जिन्स बदल जाए, सोने को चांदी के एवज, चांदी को सोने के एवज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसको ऊपर नीचे बेच सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग जिन्स हैं। यहाँ इन्होंने उसको दोनों को एक ही बतलाया मकसद के एतबार से, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वला ज़कात फी हुलिय्यिन मुबाहिन मुअद्दिन लिइस्तिमाल औ इआरतिन लहदीथ जाबिर मरफूअन लैस फिल हुलिय्य ज़काह, रवाहु तबरानी। कि सोने की ज़कात, हम लोग, अभी एक मसला है यहाँ पर कि औरतें जो सोना पहनती हैं, जेवर, उसके ऊपर ज़कात है या नहीं है। तो जुमहूर का मसला तो ये है कि उसके ऊपर ज़कात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी अहादीस आई हैं वो उस पर कलाम है, ऐसी कोई कभी अहादीस नहीं आई है। और ख़ास तौर पर एक दूसरी बात ये भी जिक्र की जाती है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की बीवियां इस कदर ज़कात निकालती थीं अपने सोने की, ऐसी कोई बात मारूफ नहीं। अच्छा, जो 2 हदीसें जिक्र की जाती हैं इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई, उसके बच्ची के गले में नहीं, उसके बच्ची के हाथों में 2 कंगन थे सोने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसकी ज़कात देती हो? उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने कहा, हस्बु की सिवारैन मिन नार, ये जो 2 सोने के तुम कंगन पहनाए हो बच्ची को, ये दोनों उसके लिए आग का ईंधन बन के उसको तकलीफ देंगे। तो ये कहना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो दोनों ही कंगन उठाकर पेश कर देती हैं और कहती हैं, हुमा लिल्लाहि व लिरसूली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि इसकी क्या ज़कात देती हो या नहीं देती हो? तो उन्होंने कहा कि जो है मुझे नहीं पता, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये चीजें रख दी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर औरत सोना ली है, उसको पहनती है, इस्तेमाल करती है, तो फिर जुमहूर के राय के मुताबिक उसके ऊपर ज़कात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह कपड़े वपड़े इस्तेमाल में रहते हैं उसी तरह का उसका हिसाब हो जाता है। बाज़ अहले इल्म का, अहनाफ का और शेख उसैमीन ने भी इसी को तरजीह दी कि सोने चांदी के जेवरात जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं उसमें भी ज़कात है। अहमत यही है कि देना चाहिए, यही शेख उसैमीन का फतवा है। अच्छा, देखिए, बात सहाबा से भी मनकूल है कि सोने चांदी के जो जेवर हैं उसमें ज़कात ही नहीं है। जैसे लैस फिल हुली ज़कातुन ज़कातुहु इआरतुहु, हज़रत अनस, जाबिर इब्न उमर, आयशा, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन तमाम का ये कौल है कि इसमें ज़कात ही नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने यह कहा कि इसमें ज़कात वाजिब करने के लिए कोई सही हदीस ही नहीं है। इसी तरह कोई मुहर्रम चीज़ बनाई गई हो सोने की, जैसे बर्तन वर्तन, इन सब में भी ज़कात वाजिब होगी। और इसी तरह कोई चीज़ आप मसलन किराए के लिए एक बिजनेस के तौर पर ही रख लिए हैं, और या खर्च के लिए भी रख लिए हैं, उतना सोना ज़कात की मकदार को पहुंच जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात सिर्फ मुस्तस्ना उसी जेवर से है जो औरतें इस्तेमाल करती हैं। जेवर के बगैर बिस्किट वगैरह हो तो फिर उसमें ज़कात वाजिब है, क्योंकि आप जो इस्तेमाल करते हैं उसी में ज़कात नहीं। बाकी किराए के लिए रखेंगे तो उसमें ज़कात होगी, क्योंकि वो अपने असल पर है। एक और मसला है छोटा सा, वो
शायद अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए तो कल बता देंगे। वयुखरिजु अन कीमतिही इन ज़ादत